Spencer here. Welcome you all to Study from Home. Once again, let's start with our class 7 Social Science History portions with chapter number 10, right? 18th century and political formations. The old Mughal provinces, right? यानी जो पुराने यानी मुगल के प्रोविंसेस के जहाँ भी मुगल का क्या था रूल था या फिर वहाँ पे उन्होंने अपने मनसबदार या फिर सूबेदार या फिर जो गवर्नर अपॉइंट किए थे वो प्लेस among the states that were carved out of the old Mughal provinces in the 18th century, three stand out very prominently. These were Awadh, Bengal and Hyderabad. यानी सारे यानी प्रोविंसेस की बात करें तो पुराने में सबसे पुराने जो स्टेट्स है उसमें एक शामिल है अवध, Bengal and Hyderabad. All three states were founded by the members of the high Mughal nobility who had been governors of large provinces. As I have told you, ये सारे के सारे प्रोविंसेस बने थे किसके चलते जबकि वहाँ पे जो गवर्नर्स मुगल्स ने अपॉइंट किए थे उसके चलते नाउ जिसमें शामिल है राइट एक है सादत खान राइट नाउ यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट राइट हु इज द नोबल और गवर्नर फ्रॉम ऑफ अवर सादत खान मुर्शिद कुली खान फ्रॉम बंगाल राइट एंड अशरफ जहाँ फ्रॉम Hyderabad. All three had occupied high mansabdari positions and enjoyed the trust and confidence of emperor. Right? यानी उन्होंने ये सारे के सारे नोबल्स बने थे वो वैसे ही नहीं बने थे उन्होंने अपने जो एम्परर थे उनका बखूबी क्या हासिल किया था ट्रस्ट हासिल किया था. Now, so Ashraf Jah and Murshid Quli Khan had a Z rank of 7,000 each, while Sadat Khan's Z was 6,000. यानी ये Z जो उनको मनसबदारी या फिर जो लिंक ऑर्डर दिया था जिसके चलते उन्हें क्या किया है रैंक दिया है that is so Ashraf Jah and Murshid Quli Khan had a Z rank of 7,000 each यानी दोनों का 7,000 था और सादत खान का कितना था 6,000. Now Hyderabad right so हैदराबाद के निजाम ऐसे फेमस ही है राइट इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट हैदराबाद निजामुल मुल्क अशरफ शाह राइट यानी वहां के जो निजाम है जो थे अशरफ शाह द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट. तो यहां पे आप कह सकते हो दैट हैदराबाद के निजाम राइट एंड दैट निजाम इज अशरफ शाह द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट इन द ईयर 1724 to 1728 was one of the most powerful members at the court of Mughal Emperor Farooq Siyar, right? और उस टाइम के यानी जो सबसे पावरफुल जो नोबल थे या फिर मेंबर थे वो कौन थे फारूक सियार थे. He was entrusted first with the governorship of Awadh and later given charge of Deccan. यानी सबसे पहले उनको जो गवर्नरशिप में उनको लीडर बनाया गया था अवध का फिर उनके बाद उनको डेक्कन सौंप दिया गया था. As the Mughal governor of the Deccan provinces during 1720 to 22, Asaf Jah had already gained control over its political and financial administration. यानी डेक्कन का जब वो डेक्कन के जो गवर्नर बने तब तक तो उन्होंने काफी सारा कंट्रोल पॉलिटिकल यानी उनका एक रुतबा राजकरण के तौर पे यानी एक लीडर के तौर पे भी बढ़ गया था एज वेल एज जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पैसों को किस तरीके से खर्च करना है क्या करना है everything they already have mastered. He was mastered in taking subsequent advantage of the turmoil in the Deccan and the competitions amongst the court nobility. He gathered power in his hands and become the actual ruler of that region. यानी ऑलमोस्ट पूरी की तरह उन्होंने सारा का सारा पावर किसके अंदर ले लिया था अपने अंदर शामिल कर लिया था राइट और जिसके चलते वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर बने थे. Now, Asaf Jah brought skilled soldiers and administrators from northern India who welcomed the new opportunities in the south. He appointed Mansabdar and Rangates. This paragraph is so much important for you, right? So what kind of strategy did Asaf Jah brought, right? So whole paragraph can be asked in the examination as a questions. From northern India who welcomed the new opportunities in the south, he appointed Mansabdar and Rangates. Although he was still a servant of Mughal emperor, he ruled quite independently without seeking any direction from Delhi or facing any interference. यानी ये मुगल के क्या थे एक तरीके से तो गवर्नर थे यानी जिनको रिपोर्ट किसको करना था मुगल के
क्वालिटीज थे दैट कि वो सारे काफी सारे डिसीजंस खुद ही लेते थे, इंडिपेंडेंटली ही रूल करते थे, जिसके लिए उन्हें किसी नहीं पूछना पड़ता था, दिल्ली को ना ही पूछना पड़ता था, या फिर वहां का कोई भी इंटरफियरेंस असफजा को फेस करना पड़ता नहीं था। मींस कि वो इतने ट्रस्टेबल थे, इसके लिए मुगल के लिए। द मुगल एम्परर मैरिड कंफर्म द डिसीजंस ऑलरेडी टेकन बाय द निजाम उल मुल्क असफजा, यानी वो शायद ही ऐसा करते थे दैट कि जो असफजा ने डिसीजन लिए है उसमें क्या करे, इंटरफियर करे या फिर उसे रोक लगाए, सिर्फ वही चीज के लिए अगर उनको लगता है कि जरूरी है तभी। Now, the state of Hyderabad was constantly engaged in a struggle against the Marathas to the west and the independent Telugu warrior chief that is known as Nayakas of the plateau. The ambitions of the Nizam-ul-Mulk Asaf Jah to control the rich textile producing areas of the commendable coast in the east were checked by the British, who were becoming increasingly powerful in that region. That we already have seen in the map 2. यानी यहाँ पे जो बतलाया है, सो जो हैदराबाद के जो उस टाइम पे जो हैदराबाद है जो हम पढ़ रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंटली अटैक हो रहा था, कि सिर्फ मराठा अटैक कर रहे थे, एज वेल एज जो तेलुगु वॉरियर जो नायक के नाम से जाने जाते थे वो भी अटैक कर रहे थे, लेकिन फिर भी असफजाह वो उनको टेक्सटाइल जो प्रोड्यूस यानी वहाँ पे जो एक तरीके से जो क्लोथिंग मटेरियल बनता था उसके ऊपर उन्हें क्या करना था, कंट्रोल हासिल करना था, राइट। और नावरडेज वो जो कंट्रोल हासिल किया है धीरे धीरे उस टाइम पे, वहां पे कौन पॉलिटिकल साउंड बन रहे थे, ब्रिटिशर्स बन रहे थे, राइट। द निजाम आर्मी, तो जो निजाम जो असफजाह है उनकी यानी आर्मी कैसी थी, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद पर्सनल ट्रूपर्स यानी उनके जो ट्रूप या फिर आर्मी कैसी थी वो। द निजाम हैज अ सवारी दैट इज सवारी ऑफ 400 एलिफेंट्स, several thousands of horsemen near his person who received upwards 100 rupees nominal pay, are extremely well mounted and richly capitalized, right। या फिर ये करके उस टाइम में यानी करीब असफजाह के जो सवार यानी उनके साथ चलने वाले जो थे तो उसमें क्या थे 400 का एलिफेंट्स थे। जस्ट इमेजिन कि 400 एलिफेंट्स एक साथ खड़े हैं तो कितना लंबा यानी उनका ग्रुप क्रिएट होगा। several thousand means कि हम कह सकते थे 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, जस्ट इमेजिन, राइट। एंड हियर दिस पर्सन हु रिसीव्ड अपवर्ड्स और इन सब को क्या किया जाता था, 100 रुपीज नॉमिनल पे यानी 100 रुपए सबको दिया जाता था, और उस टाइम में ये बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, राइट। सो वी कैन से दैट ही वाज वेल्थियर। नाउ अब बात करते हैं अवध की, राइट। सो यहाँ पे बुरहानुल मुल्क शादात खान यानी शादात खान का पूरा जो नाम है वो क्या है, बुरहानुल मुल्क, और जो असफजाह है उनका नाम क्या है, निजामुल मुल्क असफजाह, was appointed Subedar of Awadh in 1722 and founded a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of the Mughal Empire। यानी अवध जब मुगल एक तरीके से टूट रही थी तो उस टाइम पे ये जो अवध है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था जहाँ पे सारा काम क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। Such questions could be asked in the examinations that the Nizam of Hyderabad, the ruler of Awadh as well as third state too। So मुगल एम्पायर अवध was a prosperous region and वो बहुत बेहद कीमती था, किस वजह से, controlling the rich alluvial Ganga and the main trade route between the North India, alluvial plain, right। alluvial plain के बारे में आप लोग 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, राइट। एक ऐसी जगह करके जहाँ पे जो रिवर्स होती है वो रिवर्स अपने साथ जो इरोज करके लेके आती है या फिर जो सेडिमेंट्रीज खींच के आती है और किसी एक जगह पे क्या करती है वो डिपॉजिट करती है, जिसके चलते वहाँ की जो पर्टिकुलर लैंड है वो क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। दैट फर्टाइल लैंड या फिर फ्लैट लैंड इज नोन एज एलुवियल लैंड और एलुवियल प्लेस। सो वो एक तरीके से जिस जगह पे थे गंगा तो वो एक फर्टाइल लैंड था जहाँ पे कुछ भी ग्रो करो इजीली हो जाता था। In this context, it is an important or prosperous. Burhanul Mulk also had the combined offices of Subedari, Diwani and फौजदारी, यानी उन्हें सूबेदारी भी सौंपी थी, राइट। वो एक तरीके से
यानी रूल लीडर भी थे, गवर्नर भी थे, एज वेल एज दीवानी, यानी अगर उन्हें कुछ कायदे कानून बनाने हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको सजा देना भी उनका काम है। एज वेल एज दीवानी हम ये कह सकते थे कि पैसे रेवेन्यू या फिर टैक्स कलेक्ट करने का काम भी उनके पास था। नाउ इन अदर वर्ड्स ही वाज रिस्पांसिबल, यानी यही दीवानी फौजदार के बारे में बतलाया गया है, राइट। हियर इज द पिक्चर ऑफ Sadar Khan that you can see also in your textbook, right? For better understanding or for better view, you have to check, you have to see it in your textbook. So, in other words, he was responsible for managing the political, financial and military affairs of the province of Awadh. यानी अवध की जगहों में जो एक तरीके से देख रहे हैं. So, in trying to consolidate the rule, why did Mughal Subedars also want to control the office of दीवानी? यानी उनको पॉलिटिकल अगर क्या करना है, साउंड बनना है, देन उनको फाइनेंशियली क्या बनना पड़ेगा, साउंडफुल बनना पड़ेगा। एक बहुत ही आम सी बात है दैट कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनके पास पावर इतना ज़्यादा इनडायरेक्टली आ ही जाता है, राइट। सो उसी के चलते यानी वही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और उस टाइम पे भी यही लॉजिक था। So Burhanul Mulk tried to replace Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of office holders, that is जागीरदार, appointed by the Mughals। यानी बुरहानुल मुल्क ने अपने अवध से क्या किया था कि उनको मुगल का जो इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करना था, तो उन्होंने क्या किया था, राइट, दैट के जो मुगलों ने जो अपने यानी ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे ना, उनको धीरे धीरे क्या करने लगे, रिड्यूस करने लगे, और उनकी जगह पे किसके एम्प्लॉय लेने लगे, खुद के लेने लगे, राइट। जिसके चलते अब वो खुद के हैं, लेकिन वो किसकी मानेंगे, उनके ही मानेंगे। Now the Mughals he also reduced the size of जागीर्स, यानी उन्होंने जमीन यानी जो मिल्कियत थी वो दी थी, उसको भी क्या करने लगे, रिड्यूस करने लगे, and appointed his own loyal servants to vacant positions, right। और उस जगह पे वो अपने खुद के सर्वेंट्स को क्या करने लगे, जगह देने लगे। The accounts of जागीरदार were checked to prevent cheating and the revenues, that is also important factor for you for the knowledge based concern, as well as maybe ask something from in the examination too। The account of जागीरदार were checked, यानी उनके जो अकाउंटेंट्स है वो जागीरदार जो अपॉइंट किए थे कि वो चीटिंग नहीं कर रहे हैं, राइट, वो रेवेन्यू की यानी खुद के पॉकेट में नहीं काम कर रहे, या फिर कम लिख के ज़्यादा लेके अपने पॉकेट में नहीं डाल रहे, ऐसी कोई भी चीटिंग हो सकती है, राइट। रेवेन्यू ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वर रीअसेस्ड बाय द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द नवाब्स कोर्ट, यानी ये जो भी चीटर थे, जागीरदार जो चेक करते थे, उनके ऊपर भी अगर लॉयल ना रहते तो उनके ऊपर भी दूसरे ऑफिसर थे वो इसको रीअसेसमेंट फिर से चेक करते थे। ही सीज अ नंबर ऑफ राजपूत, राइट, और उन्होंने काफ़ी राजपूत जमींदार एंड एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिल खानपुर, राइट, यानी उन्होंने काफ़ी राजपूत को क्या किया था, उनके जो किंगडम्स उनको सीज यानी अपने अंदर किया था, राइट, जिनमें शामिल है राजपूत जमींदार एंड एग्रीकल्चरली फर्टाइल, यानी जहाँ पे क्रॉप्स या फिर ग्रेन्स बहुत ही इजीली ग्रो होते हैं उस जगह वो भी उन्होंने क्या किया था, सीज किया था, जिनमें शामिल है अफगान्स ऑफ रोहिल खानपुर और रोहिल खानपुर। Now the state depended on local bankers and महाजन्स for loans, और वहाँ के जितने भी लोग थे जिनको लोन चाहिए, पैसे चाहिए, तो वहाँ के जो बैंकर्स और महाजन हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। It sold the right to collect tax to the highest bidders. These revenue farmers means izardars agreed to pay the state a fixed sum of money. Local bankers guaranteed the payment of this contracted amount to the state. In turn, the revenue farmers were given considerable freedom in the assessment and collection of taxes. This developers allowed new social groups like money lenders and bankers to influence the state. यानी यहाँ पे क्या हुआ है दैट के जहाँ पे वो नोबल यानी जो अवध के नवाब का यानी वहाँ पे रूल था वो तो है, लेकिन एक चीज़ नहीं यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुई थी दैट के ये जो पूरा का पूरा स्टेट है वो बैंकर्स और महाजन के लोन के ऊपर डिपेंडेंट होने लगा था। वो कैसे होने लगा था दैट कि उस टाइम में ऐसा था कि उस टाइम में जो रेवेन्यू फार्मर्स थे यानी इजारदार जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड होती थी, राइट, जो अपनी लैंड को क्या करते थे दूसरों को या कह सकते देते थे कि वहाँ पे उसके बेसिस पे उनको क्या दी जाती, लोन दी जाती थी, राइट। सो इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स, यानी वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के जो
जो राइट्स है दूसरों को दिए जाते थे, यानी जिसके बदले में टू द हाईएस्ट लीडर्स, जो ज्यादा बोली लगा, पर्टिकुलरली मैं ये कह सकता हूँ कि एक टुकड़ा है जमीन का जिसके ऊपर मुझे यानी टैक्स लेना है और दूसरे को भी लेना है, तो वहां पे क्या होगी, लीडर्स होगी यानी बोली लगाई जाएगी, हम कहते हैं हराजी होगी, राइट, ऑक्शन होगा। यस, सो ऑक्शन में जो ज्यादा लीडर होगा यानी जो ज्यादा बोली लगाए उसको वो लैंड मिल जाएगा। अब उस लैंड के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं ना, उसके पास से क्या करूंगा मैं, मैंने तो बोली है, मेरे पास से जो पैसे चाहिए थे वो मैंने गवर्नमेंट को दे दी। अब वहाँ के जो लोग हैं वो किसके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है। अब मैं क्या करूँगा, उनके पास से मुझे जितना चाहिए उतना टैक्स मैं उनके पास से लूँगा। अब इसके चलते होगा क्या, दैट कि मैं एक पावरफुल पर्सन बन के क्या होगा, नया एक चेहरा दिखूंगा, राइट। सो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। लोकल बैंकर्स गारंटी द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, यानी जो बैंकर्स होते हैं उनको वो अमाउंट मिल के उसकी क्या होगी, सिग्नेचर हो जाती वगैरह वो। एंड इन टर्न जो रेवेन्यू फार्मर्स हैं जिनको ये हक मिल गया कि अब वो अपनी लैंड में से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो फिर एक तरीके से नए यानी बन के आए, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। जो नए नाम से जाने गए जिनमें शामिल हैं मनी लैंडर्स और बैंकर्स। अब इन दोनों का ही काम क्या है, दैट की जरूरत पड़ने पर पैसे लोन देना, और बदले में जब वो लोन वापस लेते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट के साथ लेते हैं। Now the influence of management of the state's revenue system, something which had not occurred in the past, और ये वो सिस्टम थी जो पहले बनी हुई नहीं थी। अब लास्ट में बंगाल की बात करके हमारा आज का वीडियो कंक्लूड करेंगे। बंगाल gradually broke away from Mughal control under the Murshid Quli Khan, who was appointed as the नायब डिप्यूटी गवर्नर, यानी वो पूरे गवर्नर नहीं थे, गवर्नर थे यानी एक होता है चीफ गवर्नर और उसके बाद आते हैं नायब, यानी जो चीफ होते हैं उसके उससे एक ओहदा नीचे जो होते हैं उन्हें नायब के कहा जाता है, जैसे कि कलेक्टर, राइट, और नायब कलेक्टर। उसी तरीके से यहाँ पे जो बंगाल है वो ग्रेजुअली ब्रोक हो गया था, किसके कंट्रोल में, मुगल कंट्रोल से, किसके अंदर में, मुर्शिद कुली खान के कंट्रोल में। अब वहाँ पे हुआ क्या था कि वो तो एक नायब डिप्यूटी थे, कि वो गवर्नर नहीं थे ऑफ द प्रोविंस, ऑल्दो नेवर ऑफ फॉर्मल सूबेदार, और वो फॉर्मल यानी ऑफिशियल सूबेदार भी नहीं थे। मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज ऑल द पावर दैट वेंट इन द विक्टोरिया ऑफिस, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही क्विकली जो सारे के सारे पावर्स जो एक गवर्नर को मिलते थे वो सारे पावर्स से वो किसने ले लिए थे, उन्होंने हासिल सीज मींस कंट्रोल में ले लिए थे। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध के आल्सो कमेंडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, यानी जैसे हैदराबाद और अवध की बात की उसी तरीके से बंगाल में भी उन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन अपने इंडिपेंडेंस से स्टार्ट कर दिया था इन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस, और इन्होंने भी क्या किया था, मुगल के इन्फ्लुएंस को खत्म किया था। वहां पे जो मुगल इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए हैदराबाद ने क्या किया था, नए साउथर्न में से या फिर नॉर्थर्न में से उन्होंने आर्मी मंगाई थी। So Mughal influence, reduced Mughal influence in Bengal. He transferred all Mughal jagidars to Odisha and ordered a major reassessment of the revenues of Bengal. यानी उन्होंने तो क्या कर लिया था, उन्होंने किसी और को नहीं बुलाया था, इनको ही कहाँ पे भेज दिया, उड़ीसा में भेज दिया। यानी वो यहाँ पे मुगल के यहाँ पे नहीं रहेंगे तो वो बाहर के हो जाएंगे। So revenue was collected in cash with great strictness from all जमींदार, और फिर वो जो बैंकर थे जितने भी लोग थे उनके पास रेवेन्यू लेने लगा, यानी टैक्स लेने लगे। अब टैक्स लेने लगे तो वो टैक्स कैसे ले रहे थे, स्ट्रिक्टली ले रहे थे, यानी जो नहीं लेते उनके लिए पनिशमेंट होती थी। As a result, many जमींदार had to borrow money from bankers and money lenders, right? यानी जिसके चलते ये होता है कि जो जिनके पास पैसे होते वो बढ़ सकते थे, जिनके पास नहीं होते उनको क्या लेनी पड़ती थी, लोन लेनी पड़ती थी। अब लोन लेके भी उनको क्या करना पड़ता था, टैक्स भरना पड़ता था। Those unable to pay were forced to sell their land to the large जमींदार। अब जो नाकाम होते कि जो ये टैक्स पे नहीं कर पाते तो उनको क्या करनी पड़ती है, अपनी खुद की जो जमीन है वो किसी बड़े लैंड ऑनर्स या फिर बड़े जो लार्जर जमींदार हैं उनको बेच देनी पड़ती थी। The formation of regional state in 18th century Bengal therefore led to considerable change among the जमींदार, और यही जो एक तरीके से ये जो ट्रेडिशन देखने को मिला 18th सेंचुरी में, जिसके चलते ये जो जमींदारी जो सिस्टम है उसमें काफी बड़ा चेंज देखने को मिला। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर्स नोटिसेबल, यानी यहाँ पे जो ये फिगर बताया है उसमें क्या बताया है, दैट फिगर 4 अली वर्दी खान होल्डिंग कोर्ट, यानी अली वर्दी खान जिन्होंने कोर्ट को बुलाया
the time of Ali Khan, right, the Jagat Singh become the extremely populous. If we take a bird's eye view, यानी अगर हम देखें कि वो क्या हो रहा था, we can take three common features among these states. First, यानी अगर हम यानी एक बांस की नजर से देखें तो हैदराबाद, बेंगल एंड अवध इन तीनों में काफी सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है, वो यहाँ पे बतलाई है. First, though many of the larger states were established by the erstwhile Mughal nobles, they were highly suspicious of some of the administrative systems that they had inherited, in particular the Jagirdari system. Second, their method of tax collection differed. Rather than relying upon the officials of the state, all three regimes contracted with revenue farmers for the collection of revenue. यानी ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे यानी मुगल का जो यानी रूल चल रहा था तो इन तीनों ने वहाँ पे एक तरीके से जो रूल इम्प्लीमेंट किया था वो कैसा था, सस्पिशियस था, मीन शंकास्पद था, एज वेल एज और जिसमें जो मुगल के साथ जुड़ी हुई थी वहाँ पे, और इसके साथ पर्टिकुलर जागीरदारी सिस्टम मीन्स कि जमीन के साथ जो रेवेन्यू वाली सिस्टम थी वो, या फिर नोबल वाली जो सिस्टम थी वो. एंड रेदर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, यानी वो सिर्फ ऑफिसर्स के स्टेट के और जहाँ के जो स्टेट के ऑफिसर उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, जो रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, यानी उनका रिलेशन एक मजबूत हो गया था. द प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी थोरोली disapproved by the Mughals. यानी इजारदारी सिस्टम थी जहाँ पे जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनको क्या दिया गया, ये अधिकार दे दिया गया कि अब वो टैक्स पे, अब वो टैक्स यानी जो लीडर्स हुए यानी जो ऑक्शन हुए उसके बाद उनको जमीन दे दी, अब वो क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, जिसको मुगल ने क्या किया था, नागवार माना था, यानी उसको अच्छा नहीं माना था. Mughals spread all over India in the 18th century. Their impact on the countryside differed considerably. यानी जिसके चलते उनका जो एक impact है वो क्या हुआ था, reduce हुआ था. The third common feature in all these regional states was that emerging relationship with the rich bankers and the merchants. यानी उनका जो एक तरीके से ताल्लुक जो bankers और rich merchants से हुआ था वो भी एक तरीके से common देखने को मिला है. These people lent money to revenue farmers. ये जो रेवेन्यू फार्मर्स को क्या करते थे, पैसे देते थे. रिसीव लैंड एज अ सिक्योरिटी एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम दिस लैंड थ्रू देयर ओन एसेट्स. यानी रेवेन्यू फार्मर्स के पास से वो लैंड ले लेते थे, जिसके बदले में उनको ये अधिकार दिया जाता था कि क्या वो उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनके पास से वो बैंकर्स क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, राइट. जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो. सो वो लैंड एज अ सिक्योरिटी उनको मिलती, राइट. एंड उसके ऊपर जो टैक्स लेते वो उनके अपने खुद के क्या होते थे, ऑफिशियल्स होते थे या फिर एजेंट्स होते थे. थ्रू आउट इंडिया द richest merchants and the bankers were gaining a step in the new political order. So इसके चलते यानी बैंकर्स जो थे वो और मर्चेंट्स थे वो उनको एक नई जगह मिली, क्या करने के लिए, एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर बनाने के लिए. The Vatan Jagirs of the Rajput that we will discuss in the next video. Today that's all for today. Right here the descriptions of particular this, right, in the late writing that we will have to understand or read. Many Rajput rulers accepted the suzerainty of the Mughals, but Mewar was the only Rajput state which defied Mughal authority. Rana Pratap ascended the throne at Mewar in 1572 with Udaipur and large part of Mewar. Under his control, a series of envoys were sent to the Rana to pursue him to accept Mughal sovereignty, but he stood his ground. यानी यहाँ पे जो राणा प्रताप थे वो एक ऐसे रूलर थे कि जिन्होंने यानी मुगल के सामने न झुकने वाली एक कंडीशंस क्रिएट की थी. बहुत मरतबा मुगलों ने अपने यानी जो आर्मी फोर्स को क्या किया था, उनको सरेंडर करने या फिर उनके लिए भेजा था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या नहीं माना था, उनकी ये ऑफर को माना नहीं था, राइट. So that's all for today, right. We will see the Vatan Jagirs of Rajput that we will discuss in the next, right. Till then, take care of yourself, right, your